So first of all, whenever we talk about what exactly MongoDB is, let's talk about few main technical terms that we use while defining MongoDB. MongoDB को define करने के लिए क्या-क्या technical terms है जो use किए जाते हैं सबसे पहले, ठीक है? The what exactly MongoDB is. So first term is it is document oriented NoSQL database. ठीक है, सबसे पहली चीज आपके पास जो MongoDB है that is a type of document oriented. हम लोगों ने 4 टाइप के अभी तक NoSQL databases देखे थे. So MongoDB is document oriented. Okay, it is one of the major NoSQL database that is used to store high volume data storage. जितना आपके पास amount of data ज़्यादा है, MongoDB उतना ही एक better database है use करने के लिए. Okay, then it uses the collections and the documents. ये पीछे जाकर क्या use करता है? Collections और documents use करता है. We'll be talking about like what are the collections and what are the documents. अभी हम उसके बारे में बात करना शुरू करेंगे. Okay. So first of all, what exactly MongoDB is? It is document-oriented NoSQL database that is used for storing the high-volume data, and it uses the collection and documents instead of using tables, rows, and columns and all. Okay. Now, how exactly the architecture of this MongoDB look like? So first of all, suppose you have some sort of a database available. लाइक डेटाबेस तो देखो डेटाबेस है, चाहे आप वो एसक्यूएल में बात करें या नो एसक्यूएल में बात करें, इट डजंट मैटर. डेटाबेस इज लाइक जो भी आप लोग समझते हैं डेटाबेस के बारे में, उसकी कोई अलग डेफिनेशन नहीं है यहाँ पे. डेटाबेस के अंदर हम लोग क्या बनाना शुरू करते हैं? कलेक्शंस बनाना शुरू करते हैं. तो जब आप लोग टेबल्स की बात करते हैं कि वहां एसक्यूएल में आप क्या करते हैं, यू जनरली बिल्ड टेबल्स इनसाइड द डेटाबेसेस. हियर वी जनरली बिल्ड कलेक्शंस इनसाइड द डेटाबेसेस. फर्स्ट थिंग. सेकंड, इनसाइड दोज कलेक्शन वी कंटेन द सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, और उन सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स को आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से लिख कर आते हैं. सो एक डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट के अंदर हमारे पास अलग अलग टाइप ऑफ डेटा स्टोर किया जा सकता है. ओके, वेरी सिंपल थिंग, बहुत सिंपल है यहाँ पर इसको समझना. लेट्स टेक फ्यू मोर एग्जांपल्स रिलेटेड टू दी MongoDB कि ये किस तरीके से दिखता है. ओके, सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट सम MongoDB architecture, suppose you have some sort of a database available. आपके पास कोई database है, let's name it as online shop. Okay, this is the name of database you have. Inside that database, what you will be having is a collection, or there will be lot of collections available. उसके अंदर आपके पास क्या होंगे? collection. Online shop के अंदर क्या क्या collections हो सकते हैं? Customers, products, orders. These are the kind of collections I'll be having inside my online shop database. And in that collection, what we have is documents. Collections के अंदर हम लोगों के पास क्या होते हैं? Documents होते हैं. अब बात करना शुरू करें. Let's say you have a user customer collection. Customer collection के अंदर हम लोगों के पास क्या होगा? Store किया होगा आप लोगों ने documents को कुछ इस तरीके से. Like there is a name. This is document 1, document 2, document 3 and so on. Same in products and same in orders. ऐसे हम लोगों के पास products के अंदर एक document होंगे, और ऐसे ही हम लोगों के पास orders के अंदर भी documents available होंगे. Okay, so I hope it is clear to you that what exactly MongoDB is. So first of all, if we talk about the types of data, we have 3 type of data: unstructured, स्ट्रक्चर्ड एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड. स्ट्रक्चर्ड के अंदर हम लोग बात करते हैं टेबल की फॉर्म में जो डेटा मिलता है हमें, दैट इज इन फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम. So you'll be having row and columns like Excel file if you have seen that. अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की बात करें तो उसमें आप लोगों को इमेजेस, रॉ टेक्स्ट, ऑडियोज, वीडियो, इस तरह का डेटा मिलता है. सेमी स्ट्रक्चर्ड की बात करें तो वहां पर हम लोग के पास जेसन या एक्सएमएल टाइप का डेटा कुछ मिल जाता है. नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट NoSQL. ओके, तो अब डेटा का टाइप हमने समझ लिया. अब हमें पता है कि अगर स्ट्रक्चर्ड डेटा है तो हम लोग यूज कर सकते हैं SQL जैसा कुछ. ओके, अनस्ट्रक्चर्ड के लिए भी हमारे पास अलग अलग स्टोरेज टाइप्स होते हैं. राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एक्चुअली द सेमी स्ट्रक्चर्ड वन. सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस को समझने के लिए देयर इज अ टर्म NoSQL. ये हम लोगों को समझना है. सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट दिस NoSQL टर्म, the first thing come into our mind is कि कोई टेबल नहीं होगी. But first, if we talk about the definition, the full form of NoSQL, it is not only SQL.
तो नो का भी मतलब होता है यहाँ पर नॉट ओनली एन एसक्यूएल. तो दिस इज द बेसिक फुल फॉर्म ऑफ नो एसक्यूएल. ओके, आफ्टर दैट we talk about like why we need NoSQL, what is the purpose of it, what is the use of it. तो एक्चुअली हम लोगों के पास चार तरह के NoSQL डेटाबेस होते हैं. एक होता है हम लोगों के पास की वैल्यू बेस्ड, एक होता है हम लोगों के पास कॉलम बेस्ड, एक होता है हम लोगों के पास डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड, एक होता है हम लोगों के पास ग्राफ बेस्ड. ओके, सो दीज आर द फोर टाइप ऑफ databases, four type of different kind of databases we have in NoSQL. तो NoSQL चार तरह का होता है: key value, column, document and graph. Okay, if we talk about key value, then it is actually based on Amazon Dynamo. Okay, you can Google it about what is Amazon Dynamo. DynamoDB. Okay, so you can like find out the comparisons and all. It's up to you. बस हम लोगों ने एक स्टार्टिंग समझ लिया है कि अच्छा there is a something known as DynamoDB at the back. So when you have a key value based, then we talk about Amazon Dynamo. Okay, if we talk about column based, then it is actually based on Google Big Table. So you can also Google it. What is Google Big Table? Okay, so you can read out the papers. इन सबके papers भी हैं, रिलीज होते हैं, जो रिलीज हुए थे उस टाइम पर जब ये बिल्ड हुए थे. तो you can just read about these things. What is this Google Big Table? Okay, then there is a document oriented, that is actually based on JSON and the XML. And finally we have a graph based, something like Neo4j, एक काफी पॉपुलर हम लोग का ग्राफ बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर होता है that is actually based on graph data structure. Okay, so I'll write here based on graph data structure. Okay, so these are the few examples of the NoSQL databases. कुछ इस तरह के हमारे NoSQL databases होते हैं. So if we talk about first of all the key value based, जब key value based की हम लोग बात करते हैं तो we actually talk about only key and value. तो हम सिर्फ उस मोमेंट पे सिर्फ key और value की ही बात कर रहे होते हैं, nothing more than that. So it means if whatever the like data you have, you will be having a key, and with respect to that key there will be one value. Suppose there is a name, so corresponding to name you will be having a value. There is a age, you will be having a value. There is a department, there is a value. Simple इतना होता है की वैल्यू के अंदर. Okay, so it means जो भी आपका डेटाबेस होगा उसके पास एक रो होगी, and in this particular row you will be having this data only. If we talk about the second row, in next row you will be having another key value pair based. Okay, so that's what key value based data structure database look like. इस तरीके से दिखता है हम लोगों का key value base. उसमें सिर्फ key और value मिलेंगे आपको हर एक रो के अंदर. That is simply a key value base. Okay, next one is column based. कॉलम बेस्ड इज लिटिल बिट इंटरेस्टिंग. ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग डेटाबेस होता है जिसको मैंने बताया कि ये गूगल के बिग टेबल के ऊपर डिपेंड करता है. तो कैसा दिखता है ये? व्हाट एग्जैक्टली इट डज, देयर इज अ कॉलम फैमिली. इसके अंदर क्या होता है? कॉलम फैमिली होती है. ओके, सो देयर इज अ कॉलम फैमिली अवेलेबल, एंड इन दिस कॉलम फैमिली देयर इज अ रो की. ओके, नॉट रो की, इट इज रो की. तो मतलब एक रो होगी और रो की कोई की होगी, सिंपल. एंड बेस्ड ऑन दैट यू विल बी हैविंग अ कॉलम नेम. यहां पर क्या होगा? आपके पास एक कॉलम का नेम होगा. अब जो कॉलम का नेम होगा ना, यहां पर होगी की, यहां पर होगी उसकी वैल्यू, फिर यहां पर होगी की, यहां पर होगी वैल्यू. देन अगेन यू विल बी हैविंग अ की, देन अगेन बेस्ड ऑन दैट यू विल हैव वैल्यू. फिर यहां पर होगा सेकेंड कॉलम, दिस इज कॉलम नेम, दिट इज अनदर कॉलम, और इसके अंदर भी क्या होगा? की, वैल्यू, देन की एंड वैल्यू. ओके, समथिंग लाइक दिस इज गोइंग टू हैपन. कुछ ऐसा हम लोगों के साथ इसमें होता है. तो व्हाट एग्जैक्टली वी आर टॉकिंग अबाउट, कि इतना समझ आता है तो हम क्या करते हैं, इसको जाकर ऐसे डिवाइड कर देते हैं. तो यू हैव अ कॉलम नेम,
then this is divided something like this. Okay, so this is a column based database. तो अब कुछ कॉलम बेस्ड डेटाबेसेस की अगर बात करें या बाकियों के भी बारे में बात करें, तो जो हम लोगों का सिंपल की वैल्यू बेस्ड हमारा डेटाबेस है, जैसे कि मैंने आपको बताया Amazon का एक DynamoDB होता है, इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन दैट. Still, if I talk about few more examples, then there is a database known as React. There is a Redis database. So these are the databases that are completely dependent on key and value, only key and value. Okay, and if we talk about the column based database, then there is a database, again popular databases. If you have heard about HBase is a popular one. There is a Cassandra database. There is a Hypertable, if you have heard about. So these are the databases that are based on, that are actually column based, that follows the column based architecture. Okay, so Cassandra and HBase are one of the most popular databases we use generally in big data. Okay, in general हम लोग या तो big data के साथ यूज करते हैं. Okay? तो अभी हमने जो कॉलम का स्ट्रक्चर देखा, तो वो तो समझ आता है कि कुछ ऐसा होगा, लेकिन इन रियलिटी इन डेटाबेस व्हाट इट लुक लाइक, डेटाबेस में वो कैसा दिखता है उसकी अगर बात करें तो वो कुछ ऐसा नजर आता है. देखो, यू विल बी हैविंग अ रो, आपके पास एक रो होगी, तो देयर विल बी अ रो. अब रो के अंदर कॉलम्स कैसे होंगे, होगा तो की वैल्यू पेयर. तो यहां पर आपके पास सपोज आईडी इज 1, लेकिन इसके साथ एक एसोसिएटेड होगा कॉलम. ओके, तो यहां पर होगा उसका नेम, देन एज, समथिंग लाइक दिस. ओके, देन यू हैव सम अदर कॉलम, इस तरीके से होगा. फिर अगेन उसके अंदर कुछ अलग की वैल्यू पेयर हो सकते हैं, जैसे कि देयर इज अ फोन नंबर, देयर इज अ डिपार्टमेंट. तो कुछ इस तरह का दिखता है हम लोगों का कॉलम बेस्ड. ओके, जो कि आपको कैसेंड्रा या एच बेस में देखने को मिल सकता है. यू वांट टू सी, तो एक काम करो आप लोग यहां जाकर देखकर आते हैं कैसेंड्रा डीबी और इसके इमेजेस पे चलते हैं. ओके, तो इन दिस आई विल ट्राई टू सी इफ वी गेट एन एग्जांपल. ये देखो, कुछ एग्जांपल आप देख सकते हो, कुछ इस तरह का डेटा आपको नजर आना शुरू होगा. इट्स अ बेसिक कंपैरिजन बिटवीन द RDBMS एंड कैसेंड्रा. लाइक कि कोई टेबल उसने बनाई यहाँ पर, देन देयर इज अ ट्वीट टेबल, देयर इज अ फॉलोअर्स टेबल. तो इस तरीके से कुछ बेसिक बेसिक डिफरेंशिएशन उसने करके बताया कि इस तरीके से आप डेटा को स्टोर करा सकते हैं. यू कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज, समथिंग लाइक दिस. ये दूसरे तरह का डेटाबेस होता है. देन वी हैव डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड. और डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड, अब डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड क्या होता है उसकी बात करते हैं. जैसे कि हम लोगों ने बात की, जो NoSQL का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर है डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड, जिसमें कि MongoDB लाइक करता है, जो हम सीखने जा रहे हैं. तो हाउ MongoDB इज डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड. तो एक्चुअली व्हाट इट डज इज, क्या करता है जाकर डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड की बात करें, यहां पर आपके पास कोई कलेक्शन होते हैं. सबसे पहले वी यूज अ टर्म नोन एज कलेक्शन इंस्टेड ऑफ टेबल. तो टेबल की जगह आप क्या वर्ड यूज करोगे यहाँ पर, कलेक्शन. तो कलेक्शन जब बनता है, यानी कि टेबल जब बनती है, तो उसके अंदर आपको क्या मिलेगा, एक डॉक्यूमेंट मिलेगा. डॉक्यूमेंट एक्चुअली कंप्राइज ऑफ की वैल्यू पेयर. डॉक्यूमेंट के अंदर मिलेंगे क्या, डॉक्यूमेंट के अंदर की वैल्यू पेयर ही मिलेंगे, उसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा. ओके, so there is a document, and in that particular document what you will have is a again key and value pair. So you will be having some ID, some name, age, ऐसे करके आपने एक डॉक्यूमेंट बिल्ड किया. तो क्वेश्चन ये आएगा कि की वैल्यू पेयर जो बेस डेटाबेस था वो भी तो ऐसे ही था हम लोगों का, लेकिन इन दिस वी कैन हैव नेस्टेड डॉक्यूमेंट. अब आपके पास डॉक्यूमेंट के अंदर भी डॉक्यूमेंट हो सकते हैं. ये एक डॉक्यूमेंट बनाया आपने, सपोज ये एक यूजर की डिटेल थी. Now if we talk about second user detail, ID है, name है, and then there is a details key that might contain the array. यहाँ पर array store कर सकते हो आप, और you can also consider some sort of a another document that is known as a embedded document, or we say nested document. Okay, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर documents build होते हैं. That's why it is known as document based. इसीलिए MongoDB को भी कहाँ स्टोर किया जाता है, MongoDB को भी कहाँ रखते हैं हम लोग, डॉक्यूमेंट बेस्ड में रखते हैं, की वैल्यू में नहीं रखते हैं. बिकॉज वी मेक दी डॉक्यूमेंट्स, और डॉक्यूमेंट के अंदर कितने भी मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं. ओके, सो आई होप इट इज ऑल्सो क्लियर that what exactly the document oriented is. And finally we talk about the graph based.
तो इसके लिए आप लोगों को ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर अगर पता है तो दैट इज अ गुड थिंग, एंड द मोस्ट पॉपुलर डेटाबेस इज नोन एज Neo4j। ओके, तो Neo4j काफी पॉपुलर डेटाबेस है जो हम लोग यूज करते हैं इन एग्जांपल्स लाइक मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम, मशीन लर्निंग के अंदर काफी पॉपुलर है ये आज की डेट में। तो लेट अस सर्च फॉर Neo4j। ओके, सो Neo4j लुक लाइक दिस, कुछ ऐसा दिखता है उसका कनेक्शन, ऐसा दिखता है उसका डेटाबेस, कुछ इस तरीके से वो रिलेट करता है। तो ये आपको समझ आ सकता है इजीली अगर आप लोगों ने ग्राफ पढ़े हैं तो। अगर आपने ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा है यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस डेटा। ओके, सो दैट्स हाउ ग्राफ डेटाबेस लुक लाइक। तो नाउ आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि हम लोगों के पास चार तरह के डेटाबेसेस हैं नो एसक्यूएल के अंदर, और उसमें जो मोंगोडीबी है दैट इज द डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेस जो कि हम सीखने जा रहे हैं। ओके, so I hope it is clear till now. Okay, so now we are going to see that how we can simply install, download and install the MongoDB. MongoDB को कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल करना है हम लोगों ने जाकर। MongoDB के अलग-अलग वर्जन्स आते हैं, एंड देयर इज वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग कि MongoDB का इकोसिस्टम भी आता है। MongoDB के इकोसिस्टम के थ्रू हम ये पता कर सकते हैं कि MongoDB को और कहाँ-कहाँ यूज किया जाता है, किस-किस जगहों पे, किस-किस प्लेटफॉर्म पे हम इसको यूज कर सकते हैं। लाइक क्लाउड में बहुत पॉपुलर है हम लोगों के पास, मॉडर्न एप्लीकेशंस के साथ हम इसको यूज कर सकते हैं। सो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स वी कैन टॉक अबाउट यूजिंग द MongoDB। ओके, इसका कंप्लीट एक इकोसिस्टम आता है, वो आप देख सकते हो। इकोसिस्टम से आपको पता चल जाएगा कि MongoDB को कहाँ-कहाँ रियल टाइम यूज किया जाता है। देखो, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के लिए भी यूज किया जाता है, वहां पे आप मोबाइल एप्स के लिए यूज कर सकते हो। डेटा विजुअलाइजेशन इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। आप लोग अगर कभी टैबल्यू, पावर बीआई कोई ऐसी चीजें पढ़ें, बिजनेस इंटेलिजेंस के टूल्स आते हैं हम लोगों के पास, बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स के साथ MongoDB बहुत यूज किया जाता है आजकल, क्योंकि उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, लाइक हम लोग को ग्राफ, चार्ट्स ये सब बिल्ड करने होते हैं, तो हम लोग MongoDB को यूज करके इजीली डेटा गेट कर सकते हैं, और बेस्ड ऑन दैट वी कैन सिंपली विजुअलाइज दी आउटकम्स। ओके, तो ये भी एक MongoDB का प्रोडक्ट है। सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स। सो लेट्स टॉक अबाउट इंस्टॉलेशन पार्ट। तो सॉफ्टवेयर में चलते हैं। सॉफ्टवेयर में जाकर हम लोग को अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे, डेवलपर टूल, कंपास, ऊप्स मैनेजर एंड कनेक्टर्स। सो विल गो टू द कम्युनिटी सर्वर, दैट इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स ओपन डॉक्यूमेंट डेटाबेस। तो हम लोग को जाना है कम्युनिटी सर्वर में। So let's go to this community server, and in this community version we can see the latest version is 5.0.1, that is the current stable latest version. Platform ये auto detect कर लेता है वैसे तो, but if it is not able to detect then you can like simply mention whatever your the platform you are using, and we have to download the MSI, that is the installer of MongoDB. Okay, तो ये जाकर आपको MongoDB का एक community version download करके दे देगा. So let's click on download button. It will start downloading the MongoDB setup. ओके, तो सेटअप मिलने के बाद इसको इंस्टॉलेशन करना है हम लोग को। इंस्टॉलेशन बिल्कुल वैसे की जाती है जैसे कोई भी एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर को आप इंस्टॉल करते हो। ओके, सो आई ऑलरेडी हैव इंस्टॉल्ड। आपको अगर इंस्टॉल करना है तो जब ये आपका सेटअप डाउनलोड होगा, जैसे आप किसी भी नॉर्मल सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हो सेम वैसे इंस्टॉल करना है। देयर इज नथिंग न्यू इन द इंस्टॉलेशन पार्ट एक्चुअली। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि इंस्टॉल करने के बाद व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। लेट्स गो टू द ड्राइव वेयर यू हैव इंस्टॉल्ड इट। तो हम लोग जाते हैं MongoDB फोल्डर के अंदर। सो आई हैव 4.4 वर्जन इंस्टॉल्ड इन माय मशीन, और इसके अंदर हम लोग को जाना है बिन फोल्डर के अंदर। इन दिस फोल्डर आई हैव इंस्टॉल्ड MongoDB। यहाँ पे हम लोग का MongoDB है। ओके, अब इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, MongoDB को स्टार्ट करना है, और MongoDB को स्टार्ट करने के लिए हम लोग जाकर यहाँ एक कमांड प्रॉम्प्ट स्टार्ट करते हैं। देयर इज अ CMD हियर। ओके, इस कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर जाकर आप लिखकर आ सकते हो mongo d, और एंटर करते हैं। जैसे ही mongo d लिखकर एंटर करते हैं, इट विल स्टार्ट दी MongoDB सर्वर। ये MongoDB का सर्वर स्टार्ट करके आ जाता है। ओके, नाउ द सर्वर हैज बीन स्टार्टेड, एंड बाय डिफॉल्ट MongoDB यूजेस दिस पोर्ट 27017। इसको चेंज भी कर सकते हैं हम लोग। जब MongoD स्टार्ट करते हैं तो हाइफन पोर्ट और पोर्ट नंबर मेंशन कर सकते हैं कि किस पोर्ट पे मुझे स्टार्ट करना है। बाय डिफॉल्ट द पोर्ट नंबर इज 27017। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि इसको मिनिमाइज करते हैं और एक और कमांड प्रॉम्प्ट स्टार्ट करते हैं। यहां जाकर हम सिर्फ Mongo लिखकर एंटर कर सकते हैं, सिंपल Mongo, एंड इट विल डायरेक्टली स्टार्ट दिस
shell. Okay, so that is the simple installation of MongoDB. यहाँ तक अगर आप आ जाते हैं, it means MongoDB is successfully installed in your machine. So first of all, we'll be talking about that how to create a database and use it, कैसे उसको create करना और use करना है, and then how to create the collections in database. तो पहले हम लोग databases के operations की बात करते हैं. Okay, तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, we have to go inside the C drive में चलते हैं, जहाँ पे भी आपका installed है MongoDB, और यहाँ से we have to go inside the MongoDB folder and server 4.4 bin folder के अंदर आ जाते हैं. You have to open command prompt here. उसके दो तरीके हैं, या तो shift plus right click कर सकते हो, you will get a option open PowerShell here, okay, or you can directly click here and write cmd enter. तो यहाँ से आपको cmd मिल जाता है. यहाँ पर सबसे पहले जो आपने कमांड लिखनी है वो है mongo d enter. तो ये क्या करता है, mongo का डेटा सर्वर स्टार्ट कर देता है. सो यू राइट mongo d enter, it starts the MongoDB server. Minimize it. Then again open one more command prompt and then you have to write mongo enter. अब हम लोगों का mongo का डेटाबेस स्टार्ट हो चुका है. यहां पर हम लोगों को अपनी डेटाबेसेस, टेबल्स एंड ऑल क्रिएट करने हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल एक कमांड होती है हम लोगों के पास. सबसे पहले देखते हैं क्या क्या डेटाबेसेस अवेलेबल है. तो show dbs is the command that we can use to show the databases that we have created so far. So this is the list of databases I have created till now. ये सब वो databases हैं जो मैंने अभी तक create किए हैं. Okay, now we want to make another one. So we'll write use and let's name it as db_1. Simple. बस हम लोगों ने उसका नाम क्या रख दिया जाकर, db_1 and enter. ये दो चीजें करके आता है. डेटाबेस क्रिएट भी हो जाता है यहाँ पर और साथ साथ डेटाबेस स्विच भी हो जाता है. ओके, इफ वी टॉक अबाउट इन एसक्यूएल में पहले आप क्रिएट करते हो फिर स्विच करते हो यूज कमांड करके, बट हियर इन सिंगल कमांड यू कैन डू बोथ द थिंग्स. ओके, बट देयर इज वन थिंग, अगर आप शो डीबीएस करके एंटर करते हो इट वॉन्ट बी विजिबल टू यू राइट नाउ. ये आपको अभी नजर नहीं आएगा. यू कैन सी देयर इज नो db1, हमने तो क्रिएट कर दिया. नाउ क्लोज इट, अगेन ओपन इट. तो आपने क्लोज किया, दोबारा इसको ओपन किया, मोंगो एंटर किया and then try to see whether you got this database or not. So we created the db1, it is still not here. तो अभी भी शायद मेरा अपडेट नहीं हुआ या तो डेटाबेस. you will get, अगर हम एक बार सर्वर भी बंद कर दें, एक बार इसको भी बंद कर दें, okay, then restart the server, mongo d, minimize it. विल बी टॉकिंग अबाउट दीज थिंग कि ऐसा क्यों होता है कि ये कुछ कमांड्स होंगी बहुत ईगर एग्जीक्यूशन होता है, कुछ में लेजी एग्जीक्यूशन होता है, कुछ कमांड बाद में रिफ्लेक्ट करती हैं चीजें. अब एंटर करते हैं और फिर से शो डीबीएस करते हैं, देखते हैं अभी हम लोग को नजर आता है क्या. ठीक है, अभी भी नहीं आया, कोई बात नहीं. लेकिन अभी आगे चल के जब उसको यूज कर रहे होंगे ना, जैसे कि अगर हम लोग चलते हैं वापस यूज db_1 के अंदर, जो कि हम लोग का ऑलरेडी क्रिएट हो चुका था. ओके, अब यहाँ पर जाकर हम एक कलेक्शन क्रिएट करते हैं. सपोज db dot and then there is a create collection. Inside this let's create collection demo and enter. Okay, अभी क्या है ना, हम लोग का जब डेटाबेस बना वो खाली था, उसमें कोई कलेक्शंस नहीं थे. अभी हमने एक कलेक्शन क्रिएट किया है, तो आई कैन राइट शो कलेक्शन, तो इट विल शो demo. नाउ लेट्स सी कि क्या मुझे अब डेटाबेसेस की लिस्ट में db1 नजर आता है. ओके, नाउ वी कैन सी db1 इन द लिस्ट. पहले नजर क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि हम लोगों के पास डेटाबेस खाली था. उसके अंदर जब तक आप कोई एटलीस्ट वन कलेक्शन क्रिएट नहीं करते हो तब तक वो नजर नहीं आता. ओके, so this is the first thing, that how you can simply create the database. So now we'll be talking about how to create the collections in database. अब कलेक्शंस क्रिएट करते हैं, तो कलेक्शन क्रिएट करने के हम लोगों के पास दो तरीके हैं. फर्स्ट इज कि हम लोग एक क्रिएट कलेक्शन मेथड यूज कर सकते हैं, और वी कैन डायरेक्टली क्रिएट द कलेक्शंस ऑन फ्लाई. ओके, क्रिएट कलेक्शंस ऑन फ्लाई का मतलब क्या होता है कि आप रन टाइम पर भी कलेक्शन क्रिएट कर सकते हो. ओके, हाउ, लेट्स सी. सपोज वी आर इनसाइड सम सॉर्ट ऑफ अ डेटाबेस
db1. Okay, in this database what are the collections we have? Let's see. Show collections, but there was one collection demo. Okay, we also have to delete that, later we'll do. अभी हम लोगों के पास एक कलेक्शन है डेमो के नाम से, जो कि हमने क्रिएट किया था यूजिंग अ क्रिएट कलेक्शन मेथड. ओके, but this time I'll write here db dot demo underscore 2 dot insert 1. insert 1 एक प्रीडिफाइंड मेथड है, तो अगर आप इसको एज्यूम करो इट्स लाइक अ ऑब्जेक्ट, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट लगाते हो तभी तो उसके बाद डॉट यूज करते हैं हम लोग. फिर हम लोगों ने लिखा insert 1. अब insert 1 के अंदर जाकर आप अपना की वैल्यू पेयर स्टोर करके आ सकते हो. सपोज यू स्टार्ट राइटिंग id 101, name John, then department is something IT. कुछ इस तरह का हम लोगों ने एक डेटाबेस क्रिएट किया. सो इन रिटर्न यू विल गेट एक्नॉलेज ट्रू इंसर्टेड आईडी ऑब्जेक्ट आईडी. तो ये एक ऑब्जेक्ट आईडी खुद से क्रिएट करता है. तो ये डेमो2 नाम का तो डेटाबेस था, कलेक्शन था ही नहीं हम लोगों के पास. इफ यू पे अटेंशन टू दिस पार्ट, पहले हम लोगों ने डेमो तो क्रिएट किया था लेकिन डेमो2 थोड़ी ना क्रिएट किया था. इफ यू एग्जीक्यूट दिस शो कलेक्शन अगेन यू विल बी एबल टू सी दिस. आपको नजर आएगा डेमो2 इज ऑल्सो हियर. ओके, so these are the two different ways to create the collection. So I hope it is also clear that how you can create the collections in MongoDB. So the next thing we'll be talking about is the capped collection. Okay, so what are the capped collection? MongoDB में क्या होता है कि आप जब भी कोई कलेक्शन क्रिएट करते हो उसकी कोई बाय डिफॉल्ट लिमिटेशन नहीं है. उसमें कितने भी डॉक्यूमेंट, कितना भी डेटा आप इंसर्ट करते चले जाते हैं. ठीक है, अब हम लोगों को ये भी पता है कि जितने भी यहाँ पर चीजें होंगी वो स्कीमा लेस होंगी. स्कीमा लेस का मतलब क्या है कि किसी भी डॉक्यूमेंट में कम डेटा हो सकता है, किसी दूसरे डॉक्यूमेंट में ज्यादा डेटा हो सकता है, तो कोई प्री डिफाइंड स्कीमा आप क्रिएट नहीं कर सकते. नाउ वी हैव अ टर्म नोन एज कैप्ड कलेक्शन. अब कैप्ड कलेक्शन क्या होता है? कैप्ड कलेक्शन को समझने के लिए विल टेक वन एग्जांपल. सो दिस टाइम आई एम गोइंग टू क्रिएट सम डेटाबेस नोन एज नेटफ्लिक्स. ओके, सपोज हम लोगों ने एक नेटफ्लिक्स नाम का डेटाबेस क्रिएट किया. Inside this I am writing here create collection, लेकिन मैं जो कलेक्शन क्रिएट कर रहा हूँ, सपोज ये मूवीज का कलेक्शन है. अब जो मूवीज का कलेक्शन होगा उसके अंदर मैं कितनी भी मूवीज डाल सकता हूँ. आई कैन स्टोर एनी नंबर ऑफ मूवीज, बट देयर इज वन सेक्शन दैट आई वांट टू क्रिएट. सपोज टॉप 10 मूवीज, मैं टॉप 10 मूवीज का एक सेक्शन बनाना चाहता हूँ. तो उसके अंदर 10 से ज्यादा मूवीज नहीं आ सकती. हाउ विल मैनेज दैट? सो दोज टाइप ऑफ कलेक्शंस आर नोन एज capped collection. So I'll name it as top 10. ये हम लोगों ने जाकर top 10 के नाम से बनाया. अब इसके अंदर top 10 के अंदर हम लोगों को क्या करना है? If we want to make a capped collection, तो आपको यहीं पर अपने की वैल्यू पेयर में पास करना होता है. You have to tell your particular database while creating. कुछ 4 पैरामीटर होते हैं इसके. So what those parameters are? There is a parameter known as the capped. तो आप capped को जाकर true करके आ जाते हो. इट मीन्स दैट यू आर सेइंग कि ये फिक्स्ड साइज कलेक्शन होगा. इट विल बी अ फिक्स साइज ऑफ कलेक्शन, कि इसमें 10 ही एंट्री रखना चाहते हो आप. ये कैसे बताओगे 10 एंट्री रखनी है? फॉर दैट वी हैव अ मैक्स वेरिएबल. तो आप मैक्स की एक वैल्यू सेट करके आ जाते हो. सपोज 10, दैट आई जस्ट वांट 10 कलेक्शंस इन माय 10 डॉक्यूमेंट्स इन माय कलेक्शन. देयर इज वन मोर पैरामीटर यू कैन सेट, साइज. आप बता सकते हो कि आपके जो पर्टिकुलर कलेक्शन होगा उसमें व्हाट विल बी द मैक्सिमम साइज इन बाइट्स आप स्टोर करना चाहते हो. ओके, तो मैक्सिमम साइज बाइट्स में आप कितना स्टोर करना चाहते हो ये भी आपने यहां पर बता देना. ओके, तो आई होप दीज पैरामीटर्स आर क्लियर. ये हमारे सबसे इंपॉर्टेंट 3 पैरामीटर होते हैं जब भी हम लोग को कोई कैप्ड कलेक्शन बिल्ड करना होगा. ओके, तो अब एक कैप्ड कलेक्शन बनाकर देखते हैं. कैप्ड कलेक्शन जब हम लोगों को बनाना है, हाउ वी आर गोइंग टू मेक दैट? सिंपल है कि यहां चलते हैं, कॉमा, कर्ली ब्रैकेट, एंड इनसाइड द कर्ली ब्रैकेट व्हाट यू हैव टू पास इज केप्ड ट्रू, एंड देन यू हैव टू सेट मैक्स 10. यू कैन ऑल्सो सेट साइज, बट राइट नाउ आई एम सेटिंग मैक्स 10. ये अब केप्ड ट्रू है और मैक्सिमम साइज इज 10. अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो देयर विल बी वन प्रॉब्लम. यहां पर हम लोगों ने लिखा टॉप 10, और टॉप 10 के साथ हम लोगों को मेंशन करना होता है कि जब आप ये कैप्ड कलेक्शन बनाते हो ना,
So there is one parameter we need to pass. I'll write here. Uh, तो do one thing. Kept true किया हमने, obtain किया. I think this is extra parameter. Yeah, but still when kept is true. Okay, okay. So it is saying size is mandatory. Size mandatory है यहाँ पर पास करना. तो कहता है जब आप kept को true करते हो ना, तो max तो आपने बता दिया कि 10 चाहिए हमें, but still you have to set size कि कितना bytes में size है जो आप fix करना चाहते हो. So right now I'm setting 10,000 bytes of data. That's it. Now the collection is being created. अब ये जो collection आपने create किया और पुराने वाला जो collection हमने create किया, what is the difference between these two collections? कि एक के अंदर आप कितना भी डेटा स्टोर कर सकते हो, लेकिन एक के अंदर सिर्फ 10 एंट्रीज अलाउड है. देखिए, तो हमने लिखा db डॉट obtain डॉट इंसर्ट 1. हम 1 बाय 1 डेटा इंसर्ट कर रहे हैं, तो जिसमें कि हम एक मूवी आईडी पास कर देंगे 101 और मूवी का नेम आ जाता है सपोज कोई, और आफ्टर दैट वी हैव अ मूवी रेटिंग सपोज 7.8. ये हमारा एक कलेक्शन इंसर्ट हो जाता है, एक डॉक्यूमेंट इंसर्ट हो जाता है. लेट्स पुट अनदर डॉक्यूमेंट. The name of the movie is something else. 7.9. एक और इंसर्ट कर देते हैं 103. Let's name it as Ironman. The rating is was 8.5. Then we have 104. Then the name is Captain America. Rating is 0.2. Then we have another movie number 5. लोगों ने ज्यादा बड़ा कलेक्शन बिल्ड कर दिया भाई. Spider-Man. Rating is 8.7. एक काम करते हैं, इंसर्ट 1 में अभी हम लोगों ने 5 मूवीज को इंसर्ट किया. लेट मी टेल यू वन क्विक शॉर्टकट. आप क्या कर सकते हो, VS कोड पे जाओ, यहां पर आप अपनी एक जेसन क्रिएट कर सकते हो. ओके, व्हाट यू कैन डू इज क्रिएट अ. सो नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट द CRUD ऑपरेशंस. और CRUD के अंदर सबसे पहला टास्क क्या है हम लोग का, दैट इज टू क्रिएट समथिंग, देन वी हैव अ रीड, देन वी हैव टू अपडेट एंड देन वी हैव टू डिलीट. तो क्रिएट करने के लिए क्या मेथड्स होंगे हमारे पास, देयर विल बी मेथड नोन एज इंसर्ट वन दैट वी हैव यूज्ड सो फार, एंड देयर इज वन मोर मेथड विल बी यूजिंग इंसर्ट मैन. तो ये दो मेथड है जो हम लोग यूज कर सकते हैं डेटा को इंसर्ट करने के लिए. बाय डिफॉल्ट भी एक इंसर्ट होता है, देयर इज वन मोर मेथड नोन एज सिंपल इंसर्ट. ओके, उसके अलावा हम लोगों के पास एक इंसर्ट वन है और एक इंसर्ट मैनी है. दैट इज टू डिफरेंट मेथड्स वी हैव. ओके, सो विल बी टॉकिंग अबाउट दीज मेथड्स वन बाय वन. देन इफ वी टॉक अबाउट हाउ टू रीड द डेटा. अब रीड करने के लिए हम लोग को क्या करना होता है, इट मीन्स टू क्वेरी द डेटा. क्वेरी डेटा मीन्स फाइंड करना. सो वी हैव सिंपली अ फाइंड मेथड. एक फाइंड मेथड मिलता है हम लोगों को, और इसके अलावा हम लोग को एक फाइंड वन नाम का भी मेथड मिलता है. ओके, सो देयर इज फाइंड वन, और इनके साथ हम लोग जनरली pretty यूज कर लेते हैं सो दैट इट विल मेक द आउटपुट लुक बेटर. ओके, सो आई होप इट इज ऑल्सो क्लियर. क्रिएट एंड रीड, दो चीजों के बारे में समझ आया. देन द नेक्स्ट वन विल बी टॉकिंग अबाउट इज टू अपडेट द डेटा. तो जब भी हम लोगों को डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करना होगा तो हम लोगों के पास एक मेथड आता है अपडेट वन के नाम से. देयर विल बी अ मेथड अपडेट मैनी, एंड देन देयर विल बी वन मोर मेथड नोन एज रिप्लेस वन. ये भी हम लोग यूज कर सकते हैं. ओके, एक सिंपल अपडेट भी मिल जाएगा. देयर इज अ सिंपल अपडेट ऑल्सो. अपडेट, अपडेट वन, अपडेट मैनी. इस तरीके से वी कैन सिंपली यूज एन अपडेट. एक और मेथड होता है हम लोगों के पास, दैट इज फाइंड वन एंड अपडेट. दिस इज ऑल्सो अ मेथड, फाइंड वन एंड अपडेट. ओके, ये भी हम लोग यूज कर सकते हैं.
एंड एट द एंड वी हैव टू डिलीट समथिंग। तो डिलीट करने के मेथड्स के बारे में देखें तो देर इज अ डिलीट वन, देर इज अ डिलीट मैनी। सो दीज आर द मेजर टू मेथड्स बाय डिफॉल्ट डिलीट करने के लिए जो हमको मिलते हैं। बाकी इसके अलावा एक रिमूव मेथड भी है अलग से। ओके तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि वी हैव रिमूव एज वेल। सो दीज आर द CRUD ऑपरेशंस वी आर प्रोवाइडेड विद। ये सारे CRUD मेथड्स हम लोग को मिलते हैं। ओके सो नाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म दोज CRUD ऑपरेशंस। अब CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वन बाय वन। सो वी हैव कस्टमर प्रोडक्ट एंड लेट्स सी वी हैव द प्रोडक्ट्स। सो db डॉट प्रोडक्ट्स डॉट फाइंड डॉट प्रिटी। तो एक बार देखकर आते हैं इसमें क्या क्या अवेलेबल था। ओके दिस वाज द ओनली डेटा वी हैव एंड लेट्स सी द डेटा इनसाइड द कस्टमर्स। कस्टमर्स में क्या क्या डेटा हम लोगों के पास। ओके तो कस्टमर में हमारे पास 3 कस्टमर है। ठीक है तो कस्टमर टेबल के साथ कस्टमर के साथ हम लोग काम करना शुरू करते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट ऑल द मेथड्स वन बाय वन। अब फाइंड तो हम पहले से देखते आ रहे हैं और इंसर्ट भी हम लोग कर चुके हैं। बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि अब हम लोगों को कुछ भी डिलीट करना है या कुछ भी और अपडेशंस करनी है तो उसके लिए इन मेथड्स को किस तरीके से यूज करना है या उनके क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं। क्योंकि हर एक के पास जितने भी ऐसा मेथड्स होंगे सबके अंदर 2 पैरामीटर होते हैं। One parameter is data and another parameter is options. Then again there is a parameter data, there is options. तो हर किसी के पास 2 पैरामीटर होंगे, data, options, data and options. Okay. So let's simply write db dot customers dot और यहां जाकर हम कुछ लिख सकते हैं delete one। और delete one के अंदर हम लोग को क्या मेंशन करके आना है that which particular entry you want to delete। Okay, so let's say I just want to delete name Sam। Okay, तो हम लोगों ने जाकर लिखा db डॉट कस्टमर डॉट डिलीट वन कि मुझे जाकर इस नेम वाले डेटा को डिलीट करके आना है। लेट्स सी तो डिलीट काउंट इज 1, एक्नॉलेज ट्रू। नाउ वी कैन सी द कस्टमर इनसाइड द कस्टमर द डेटा इज डिलीटेड। इसने जाकर उस डेटा को डिलीट कर दिया। ओके सिंपल वन। अब अगर हम लोग डिलीट मैनी जैसा कुछ लिखकर आ जाए तो सो व्हाट इफ आई राइट डिलीट मैनी और यहां से हम लोग इसको हटा देते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू यूज दिस। अब डिलीट मैनी को हमने यूज किया लेकिन इसके अंदर भी आपको कोई क्वेरी का क्राइटेरिया पास करना है। बाय डिफॉल्ट हमने कोई क्वेरी का क्राइटेरिया से क्या मतलब है, क्वेरी क्राइटेरिया से मतलब है कि आपको बताना है ना कि किसके बेसिस पर आप डिलीट करने वाले हो। तो वो मैंडेटरी है हम लोगों के लिए। ठीक है जिसके बारे में भी करेंगे। अभी हमारे पास बहुत ज्यादा डेटा नहीं है, जब इंसर्ट करेंगे तब डिलीट मैनी भी एग्जीक्यूट करेंगे। देन इफ वी राइट डिलीट मैनी की जगह हम लोग लिखकर आ जाते हैं लेट्स से अपडेट करना है मुझे किसी को जाकर। सो आई कैन सिंपली राइट अपडेट वन देन करली ब्रैकेट लिखकर आते हैं कि हमारे पास क्या है नेम जॉन एज 40। तो मुझे क्या करना है एज 41 करके आनी है। किसकी एज 41 करके आनी है, जिसका नेम जॉन है। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं अपना सेकंड पैरामीटर दैट नेम जॉन। कुछ इस तरीके से हम लोग लिख कर आ सकते हैं। ओके तो इसको चलाकर देखते हैं पहले। एरर एट द अपडेट डॉक्यूमेंट मस्ट कंटेन एटॉमिक ऑपरेटर्स। इसमें कुछ मिस किया है हम लोगों ने। राइट इट अगेन। हम लोगों ने लिखा अपडेट वन then I just have written age 41, name is John। So let's do one thing then। Okay, so now we'll do one thing कि अब प्रॉब्लम इज कि लाइक हम लोगों को जाकर ऐसे नहीं लिखना इसको। ओके अपडेट वन को कुछ ऐसे नहीं लिखते। लेट्स चेंज दिस थिंग। हम लोग लिख कर आते हैं सॉरी हाँ एग्जैक्टली हम लोग को सेट यूज करना है इसके लिए। अभी बाय डिफॉल्ट हम सेट यूज करते हैं। नेम था हम लोगों के पास लेट्स से जॉन।
और यहां से अब हम लोग को जाकर अगर जॉन का डेटा अपडेट करके आना है, देन वी हैव टू यूज दिस कर्ली ब्रैकेट डॉलर सेट, और फिर यहां से, सॉरी आई जस्ट मिस्टेकली हिट द एंटर, यहां से जाकर हम लोग कुछ लिख कर आते हैं कि क्या सेट करके आना है हम लोगों को, एज 41 सेट करके आना है हम लोगों को। ओके, तो अभी देखें, नाउ इट इज वर्किंग प्रॉपरली एंड लेट्स प्रिंट दिस। ओके, सो एज इज अपडेटेड टू 41. Okay, so I hope it is also clear that how we can simply update the data using this dollar set. तो ये डॉलर्स के साथ हम लोग क्यों यूज करेंगे, इसके साथ और भी बहुत सारे ऑपरेशंस है जो हम क्वेरी करने के लिए यूज करने वाले हैं, क्योंकि डॉलर हम लोग का फिल्टर की तरह वर्क करता है। तो अगर आप इसका सिंटेक्स समझना चाहते हैं कि व्हाट इज द सिंटेक्स ऑफ दिस अपडेट वन, देन वी सिंपली राइटिंग द फिल्टर, एंड सेकेंड थिंग इज what you want to update, okay, by using dollar set. डॉलर सेट हम लोग को साथ में यूज करें। ओके, तो अभी हमने सिर्फ बेसिक देखा है, अभी और भी हम लोगों ने देखनी है चीजें कि बेसिक फर्स्ट एक एंट्री को, एक बेसिक एंट्री को आपने कैसे अपडेट करना होता है। ओके ओके, सो आई होप यहाँ तक हम लोग को क्लियर है कि फाइंड तो हम देख ही रहे, इंसर्ट करना भी हमें आता है, अपडेट भी देखा और डिलीट भी देखा। अभी इन सब के बेसिक बेसिक ऑपरेशन हम लोग देख चुके हैं, CRUD ऑपरेशंस बेसिकली, लाइक क्रिएट भी कर लिया, रीड, अपडेट एंड डिलीट। ओके, अब इसके बाद हम लोग वन बाय वन देखना शुरू करेंगे। लाइक अगर मुझे इंसर्ट करना है तो इंसर्ट करने के और कितने तरीके होते हैं हमारे पास, या फिर मुझे अपडेट करना है तो अपडेट करने के कितने तरीके हैं मेरे पास, डिलीट करना है डिलीट करने के कितने तरीके, हर चीज के मल्टीपल हम लोगों के पास तरीके आने वाले हैं, वो सब हम देखना शुरू करेंगे इसके बाद। ओके, so we'll be using insert method only here, and the db dot customers dot insert. Now let's see the different ways to insert data. So I'm going to write simple square bracket, then curly bracket. In fact I can simply copy paste my json, this json इसको भी उठाकर आप copy paste कर सकते हो। So let's write a proper data if you want here। यहाँ जाकर हम लिख कर आ जाते हैं कि कस्टमर डेटा हम इंसर्ट करा रहे हैं, कस्टमर के पास नेम है, कस्टमर के पास एज है, कस्टमर के पास एड्रेस है। So these are the basic thing a customer has. Then copy, paste, paste. Then let's change the name, Sam31, then Tom 26, addresses Pune. So this is the data now. इसको उठाकर हम पूरे स्क्वायर ब्रैकेट को कॉपी करते हैं एंड यहां जाते हैं, इसके अंदर पेस्ट करना है हमें। तो राइट क्लिक करते हैं, जैसे ही आप राइट क्लिक करके आओगे इट विल ऑटोमेटिकली पेस्ट। ओके, तो ये बहुत ध्यान से हम लोगों को समझना है कि जब पेस्ट करने की कोशिश करते हैं हम कंट्रोल वी करते हैं, बट इज नॉट गोइंग टू डू दैट। हम लोगों ने क्या करना है, जाकर एक छोटा सा इशू हो गया मेरे ख्याल से, उसको हम एक बार सही करना पड़ेगा कि यहाँ पर एक ब्रैकेट क्लोज हो गया एक्चुअली, इट विल गिव यू द एरर। वो ब्रैकेट हमें यहाँ बंद करना था एक्चुअली, अब हम वापस जा नहीं पाएंगे तो ये एरर देगा। सो लेट्स राइट db dot customers dot insert, इतना लिखते हैं, पेस्ट करते हैं और ब्रैकेट बंद कर दें। नाउ आई थिंक इट इज बेटर। ओके, तो इट इज रिटर्न बल्क राइट रिजल्ट, राइट एरर कुछ भी नहीं है हमारे पास, राइट कंसर्न एरर, इंसर्टेड 3 ऑब्जर्वेशंस एंड देन लेट्स सी द फाइंड मेथड। तो ये देखो जी आपके पास डेटा स्टोर हो गया है। ओके, सो दैट्स हाउ वी कैन सिंपली यूज दिस इंसर्ट, कि मैं डायरेक्टली इंसर्ट यूज करके भी बहुत सारा डेटा इंसर्ट करा सकता हूँ। अब हमारे पास एक इंसर्ट वन है, वो तो सिर्फ एक सिंगल एंट्री के लिए, ऐसे ही मेरे पास एक इंसर्ट मैनी भी है जो कि मल्टीपल एंट्रीज को स्टोर करा सकता है जाकर। ओके, okay, so that's how we can simply insert many objects together. So how exactly we query the arrays? उसके लिए हम लोग को 3 चीजें मिलती हैं। It supports 3 different things known as a size, एक होता है size हम लोगों के पास, एक होता है हम लोगों के पास all, एक होता है हम लोगों के पास lm match। ये हमारे होते हैं array query selector।
ओके, दीज आर दी एरे क्वेरी सेलेक्टर। लेकिन इसके भी पहले हम लोगों को ये देखना है कि इफ हम लोगों के पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट अवेलेबल है जो कि एक हमारे पास कुछ भी है, उसकी वैल्यू एरे है और एरे के अंदर भी कुछ ना इस बार अलग चीजें होंगी। तो लेट अस से कि एक बार प्रोडक्ट्स में जाकर हम लोग चेक करके आते हैं कि हमारे पास एरे अवेलेबल है या नहीं है। सो देर इज नो एरे अवेलेबल, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है। अच्छा, एक डॉक्यूमेंट है जिसमें साइज के अंदर एरे अवेलेबल है, स्मॉल मीडियम लार्ज करके, ठीक है। तो और किसी में एक्चुअली नहीं है, तो बेटर इज कि हम किसी और उसके अंदर चलते हैं। शो डीबीएस करते हैं एक बार इसको, एंड देन यूज दिस शॉपिंग अंडरस्कोर डीबी, इसके अंदर चलते हैं। एंड देन शो कलेक्शंस, हम लोगों के पास क्या क्या कलेक्शंस हैं यहाँ पर। एंड देन वी आर गोइंग टू सी द डेटा इनसाइड द कस्टमर प्रोडक्ट, ताकि हम लोग को एक्चुअली कुछ एरे जैसा देखना है। तो लेट अस से आपके पास एक यूजर्स है, तो डीबी डॉट यूजर्स डॉट फाइंड डॉट प्रेटी, ये हम लोग के यूजर्स अवेलेबल हैं। ओके, सो हाउ मेनी यूजर्स वी हैव हियर, कि एक यूजर हमारे पास ये हो गया, 2 3 4 5, सो लेट्स मेक अ काउंट ऑफ इट। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि हमारे पास कितने यूजर्स अवेलेबल हैं, 6 यूजर। तो जो यूजर्स है ना, सबके पास हॉबीज हैं, किसी किसी के पास लेट अस से नहीं है, बट इन जनरल किसी के पास अगर हॉबी है तो इट्स एन एरे। अब अगर मेरे पास कोई ऐसा यूजर भी है, डीबी डॉट यूजर्स डॉट इंसर्ट वन, और इंसर्ट वन में हम कुछ डेटा इंसर्ट करके आते हैं, लेकिन ये जो डेटा होगा, मतलब हॉबीज इंसर्ट करनी है हम लोगों ने अगर, तो सपोज आई एम गोइंग टू इंसर्ट अ न्यू नेम, द नेम इज सिंपली Max. So there is already a Max. Let's name it as Maxwell. And the hobbies are, अब ना hobbies के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, I'm simply going to mention the array, and array के inside भी हम लोगों ने क्या किया, curly brackets. Okay, तो हम लोगों के पास क्या है यहाँ पर, यूजर्स के अंदर एक हॉबीज है, हॉबीज के अंदर हम लोगों के पास यहाँ पर कुछ करली ब्रैकेट है, तो उसका मतलब आई एम गोइंग टू क्रिएट द एम्बेडेड डॉक्यूमेंट इनसाइड दिस एरे, और यहां पर आपने लिखा हॉबी का नेम, तो लेट अस नेम इट एज हॉबी। द नेम ऑफ हॉबी इज सपोज क्रिकेट। ओके, और इसके अलावा कोई और पैरामीटर भी हम लोगों के पास अवेलेबल है, जैसे एक हॉबी क्रिकेट है एंड इसमें हम लोगों ने लिख दिया लेट अस से फेवरेट प्लेयर, की फेवरेट प्लेयर कौन है भाई उसका क्रिकेट में, यहां पर इसने लिख दिया विराट। ओके, अब सेकंड जो हम लोगों के पास अवेलेबल है, यहां पर भी हमने एक हॉबी मेंशन कर सकते हैं। व्हाट वी कैन डू, कि इसके पास एक हॉबी है लेकिन इट्स अ डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो अभी हमने इंसर्ट वन ही चलाना है खाली, तो लेट्स क्लोज दिस एंड एग्जीक्यूट। आई थिंक सम स्क्वायर ब्रैकेट इज मिसिंग, तो वी हैव टू मेंशन अ स्क्वायर ब्रैकेट हियर। एंटर करते हैं। ओके, तो अभी हम लोगों के पास ना एक डॉक्यूमेंट ऐसा है जिसके अंदर एक की वैल्यू पेयर में डेटा आपको गिवन है। ओके, अच्छा, अभी इसकी सिर्फ एक ही हॉबी थी, अब वी आर इंसर्टिंग अनदर डॉक्यूमेंट जिसका नेम कुछ और है, द नेम इज सपोज द रिकी, और हॉबीज में इसके पास एक हॉबी है क्रिकेट, और फेवरेट प्लेयर में भी हमने रिकी लिख दिया भाई। एंड देयर इज वन मोर हॉबी, दैट इज अगेन, लिख कर आते हैं और क्या क्या हॉबीज हमारे पास, सपोज बैडमिंटन है हमारे पास भाई, एंड लेट अस से कि बैडमिंटन में भी उसके पास एक फेवरेट प्लेयर है कुछ, एंड द नेम इज टीवी। ओके, तो अभी हम लोगों ने क्या किया है, जो डेटा अब हम लोगों ने इंसर्ट किया है, तो डिफरेंस इज कि पहले जो डेटा था और अब जो डेटा है, हॉबीज पहले भी थी, हॉबीज अभी भी हैं, बट दिस टाइम जो एरे हमारा गिवन है हम लोग को, द एरे एलिमेंट वी हैव इज कि आप हॉबीज स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पहले डायरेक्टली क्या लगा कर आ रहे थे, ये डायरेक्टली वैल्यूज अवेलेबल थी, बैडमिंटन, चेस, लेकिन अभी क्या है कि सपोज इसकी हॉबी क्रिकेट है, इसकी हॉबी भी क्रिकेट है और बैडमिंटन भी है। So now if you want to find out those documents where hobby is badminton, so
व्हाट वी आर गोइंग टू डू। अब इसके लिए हम लोग क्या करें, अगर हम लोगों को वो डेटा निकाल कर लेके आना है जहां पर हॉबी हमारे लिए क्या है, बैडमिंटन। सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन सिंपली राइट कि डीबी, और अब हम लोग जब फाइंड करेंगे तो उसके अंदर हम लोग मेंशन करके आ जाएंगे कि यूजर्स डॉट फाइंड, और फाइंड के अंदर ऐसा लिखकर आते हैं। अब प्रॉब्लम इसकी, हम लोगों के पास यहां पर जो हॉबीज हैं, इफ आई सिंपली राइट कर्ली ब्रैकेट हॉबीज कॉलन बैडमिंटन, तो अभी हम ये ट्राई कर रहे हैं कि मुझे वो डेटा चाहिए जहां पर हॉबीज क्या है, बैडमिंटन है। लेकिन वी कैन सी कि अगर एरे है तो वहां से बैडमिंटन इजीली आ सकता है, गेट कर सकते हो आप। सो वी गॉट टू ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, हमारे पास दो डॉक्यूमेंट आ गए जिनकी हॉबीज क्या है, बैडमिंटन है। लेकिन कौन सा डॉक्यूमेंट नहीं आया, ये नहीं आया, इसकी भी हॉबी क्या थी, बैडमिंटन थी, बट दिस डॉक्यूमेंट इज नॉट अवेलेबल। तो ये कहता है इसके लिए बहुत सिंपल काम करना है, आपने हॉबीज डॉट हॉबी करके आ जाना है और फिर जाकर हम लोग इसको चलाते हैं। लेकिन अब नाउ अगर हमने हॉबीज डॉट हॉबी लिखा है तो सिर्फ ये वाला डॉक्यूमेंट आने वाला है, रिमेंबर, क्योंकि ऑब्वियसली कि बाकी जो हमारे हॉबीज हैं वो अलग तरीके से स्ट्रक्चर्ड है और ये जो हॉबी है ये अलग तरीके से स्ट्रक्चर्ड है। सो दैट्स व्हाई व्हेन वी आर गेटिंग दिस हॉबी थिंग, जब भी हम लोग ये हॉबी मिलने वाला है तो हमें पता होना चाहिए कि अगर सिंपली एरे था तो डायरेक्टली गेट कर सकते थे, लेकिन अगर आपको एरे के अंदर भी डॉक्यूमेंट्स गिवन है देन यू हैव टू यूज डॉट, तो आपको ये डॉट वाला तरीका यूज करना होगा। ओके, सो दैट्स हाउ वी कैन गेट द एरे डेटा स्ट्रक्चर, एरे के अंदर से ऐसे डेटा गेट किया जाता है।